Okay, Ji. We last time discussed about the EMF and the voltage. और हमने ये डिसाइड किया था, क्या हमने पढ़ा था कि everyone can hear me and see this shared screen, everyone now? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what was the difference between EMF and potential difference? EMF and potential difference. EMF क्या थी? EMF was basically the battery or the cell or any source of current which we attach with something to make current flow through it. मतलब एक सेल या एक बैटरी है, वो एक सोर्स ऑफ EMF है, वो सोर्स ऑफ करंट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि चार्ज को कंटिन्यूसली किसी सर्किट में किसी लूप में मूव करवाने के लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो एनर्जी उसको वो सोर्स ऑफ EMF या वो सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई when we attach a source of EMF in a circuit or in a loop, it creates a potential difference across the components of that circuit or that loop। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। दैट इज वाई यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, ओके सो इट सेज there is a potential difference of 1 volt between 2 points in a circuit if 1 joule of potential energy is changed into other forms when 1 coulomb of charge passes between the 2 points। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट वी नो इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 volt potential difference would be created across the 2 points in a circuit or in a loop जिसमें 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, is changed into other forms of energy like kinetic energy। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में 1 joule work when it is being done, सो वोल्टेज इज मेड इज यूजिंग अ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक बात का, कंफर्म हो गई हमें बात कि EMF के बगैर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो सकता अक्रॉस एनी कंपोनेंट। क्योंकि ये जो EMF है ये सेल या सोर्स की या बैटरी की EMF होती है जो हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट, basically cell provides that necessary electrical potential energy which is to be converted into any other form of energy to uh, keep the charge moving in that loop। It says the current of a battery flows from the positive terminal around the circuit to the negative terminal। हम conventional current की बात कर रहे हैं। Once outside the battery, the current flows from a high electric potential to a lower electric potential. Once again, talking about the conventional flow of current, you could say it flows downhill. Only the hill is a hill of electric potential energy, not gravitational potential energy। जिस तरह चीज़ें जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में डाउनहिल मूव करती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ नेचुरली गिरती हैं, तो उसको हम कहते हैं वो डाउनहिल मूवमेंट है ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन यहाँ पे जो डाउनहिल मूवमेंट है वो चार्ज की है, वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करेगा. सो व्हाट वी कैन से, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, the electrical potential energy is converted into other forms of energy, mainly that is heat. एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है, यूजुअली वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Okay. So look at, for example, this diagram. This diagram shows electrical potential energy drops around an electric circuit. The high point is the positive terminal and the low point is the negative terminal. Whenever we say, ये किसी भी बैटरी का सिंबल होता है, और ये इसका हाई पोटेंशियल एंड है और ये इसका लो पोटेंशियल एंड है. सो ये एक लूप में मूव कर रही है. तो लो पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल, मोस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लॉस्ट इन द resistors. There is very little energy loss in the connecting wires. The term voltage drop refers to the decrease in electrical potential energy in a resistor. Resistor means anything which consumes electrical potential energy. जैसे ये एक resistor है, एक बल्ब जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं वो एक रेजिस्टर है. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एक रेजिस्टर की तरह काम करती है. सो इट बेसिकली कन्वर्ट्स, इट बेसिकली कंज्यूम्स the electrical potential energy and converts into any other forms of energy like kinetic energy और heat energy, और वो कंज्यूम करके एनर्जी को यूज करके वो अप्लायंस रन कर रही होती है. तो यहाँ पर भी ये देखें कि ये ए से बी सी, ये पूरे लूप में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. आई थिंक दिस इज, लेट मी मेक इट अ बिट लार्जर. I hope the view is a bit clear now. जी. So what you can observe here कि different positions पे loop में जो electrical potential energy है how it is being dropped. ऊपर वाले loop में देखें तो from A, when it falls towards A से B to C to D, it moves only, it almost remains constant. Position in the circuit, this is the potential difference in volts. क्योंकि जो वायर्स हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये वाली, ये बैटरी है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और ये एक रेजिस्टर है, और ये वायर्स हैं. इनके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. दैट इज वाई पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट throughout the positions A to B to C to D, and then suddenly D to E, क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है. कोई ये रेजिस्टर इसको कंज्यूम करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, and then E to F it because becomes very lower, and then again from F to A, जब ये चार्ज मूव करके इसमें से पास करेगा, it will gain potential energy and then it will start moving again in the loop. So this is how we can say the source of EMF, ये जो बैटरी है सोर्स ऑफ EMF है, और ये चार्ज को कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड कर रही है टू मूव इन द लूप so that current keeps on flowing.
हैज एवरीवन गॉट माय पॉइंट और नॉट? ये समझ आ गई सबको बात? यस सर। ओके, क्यों जी? एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? Okay, so if people are responding very less, so now we have ये कुछ ने एक और सर्किट की एग्जांपल दी है, ठीक है। ये 12 वोल्ट बैटरी हमने अटैच की है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये लैंप है, ये 6 ओम का कोई रजिस्टर है, अभी बताता हूँ रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। इसके क्रॉस जो है वो वोल्ट मीटर हमने V1 कनेक्ट किया, तो इसने इसको 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। ये दूसरा रजिस्टर है 4 ओम का ठीक है। सो डिफरेंट, ये दीज आर वोल्ट मीटर्स V1 V2 एंड V3 वगैरह। ये जो है ये एम मीटर्स हैं जो करंट मेजर करते हैं, और ये वोल्ट मीटर्स वोल्टेज मेजर करते हैं। तो हर कंपोनेंट के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाने का मकसद ये कि ये पता चल जाए हमें कि इसके क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, और यहाँ में से इस लूप में से कितना करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है। आगे हम अभी ये सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ करना, सर्किट कंपोनेंट्स को देखते हैं, तो ये फिर हमें समझ आ जाएगी कि सिंबल्स क्या हैं। So these are the circuit components. You can say we have already seen that we represent battery by a symbol. This is a battery symbol. ठीक है, E is 10 volts, that is a single cell. अगर ये जो लंबी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और ये जो थोड़ी सी छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को। सो दिस इज अ 10 वोल्ट बैटरी, लेट्स से इट्स ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब ये एक ही सेल है। इसमें बैटरी जो होती है वो सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। इफ यू अटैच मोर देन वन सेल्स टुगेदर इट बिकम्स अ बैटरी। दिस इज सेवरल सेल्स, मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, एटलीस्ट 2 सेल्स तो कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक सेल है, दूसरा सेल ये है। तो इस तरह अगर इसमें बहुत सारे कनेक्ट कर देंगे तो ये इस तरह एंड टू एंड आप जोड़ते जाएंगे, ये सेल बन जाएगी, सेवरल सेल्स बन जाएंगी। दिस इज द वोल्ट मीटर सिंबल विच मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर अ रजिस्टर, ठीक है ना। इन अ सर्किट डायग्राम यू ड्रॉ द रजिस्टर लाइक दिस। ये सिंबल शो कर रहा है कि ये एक 3 ओम्स का फिक्स रजिस्टर है। अभी आगे रजिस्टर की डेफिनेशन आएगी या रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आएगी, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। बहरहाल दिस इज द सिंबल ओमेगा, ये ग्रीक लेटर है, और ये रेजिस्टेंस के यूनिट को हम ओम्स कहते हैं, और ये ओम्स जो है ये ओमेगा से शो करते हैं सिंबल से, ठीक है। ओम साइंटिस्ट का नाम है, आगे हमने ओम्स लॉ पढ़ना है, उससे हमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रजिस्टर की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, और पता चल जाएगा कि ये ओम्स क्या है, ओमेगा क्यों यूज़ करते हैं। सो दिस इज ए फिक्स्ड रजिस्टर सिंबल। इस तरह भी शो कर सकते हैं, या इसको भी शो, इस तरह भी शो कर सकते हैं, इसको लोड भी कहते हैं। दिस इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती होगी, इसका सिंबल भी ये होता है, ठीक है। ये ऐसे वाला सिंबल या ये वाला यूज कर सकते हैं। दिस इज एम मीटर सिंबल, ये स्विच है जी, जैसे सर्किट को हम ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यूज करते हैं, तो दिस इज अ स्विच। दिस इज द बल्ब सिंबल, दिस इज अ कैपेसिटर सिंबल। These parallel lines, equal length lines are capacitor symbols. अब आते हैं हम the very important resistance and the Ohm's law, ठीक है जी। Ohm's law is a very important law in sciences and especially in physics, जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम करंट और वोल्टेज को इसमें we relate with each other, okay। So सपोज आपके पास ये एक सर्किट है,
ठीक है, दिस इज अ सिंपल सर्किट, दिस इज ए बैटरी, दिस इज a वेरिएबल रजिस्टर, दिस इज एन एमीटर एंड दिस इज अ वोल्ट मीटर। और जब हमने इसको सर्किट को बैटरी को अटैच किया है तो इस लूप में कोई आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज वी बिल्ड अ सर्किट इन विच we can vary the current through a piece of a wire conductor. If we measure the current through the wire and the potential difference or the voltage across the ends of the wire, we find that the ratio of current to the voltage is a constant for a given conductor. क्या मतलब ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें सपोज दिस इज अ सर्किट जिसमें हम करंट की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी करंट को अपनी मर्जी से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास ये जो है ये एक सोर्स ऑफ करंट है यानी ईएमएफ है या बैटरी है। ठीक है, एम मीटर वो करंट मेजर करता है और जो ये वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज अक्रॉस द वेरिएबल रजिस्टर मेजर करता है। अब आपने ये जो कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम वेरी कर सकते हैं। हाउ वी कैन वेरी दैट, हम क्या करेंगे इस वेरिएबल रजिस्टर को कि उसकी इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। इट्स अ वेरिएबल रजिस्टर। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can vary this with the resistance of the circuit with the help of this variable resistor। अगर हम इसको वेरी करेंगे तो उसके हिसाब से करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जो करंट और वोल्टेज की जो कांस्टेंट रेशो है वो हमें ये बता रही है कि अगर हम लेट से करंट 0.1 एम्पियर था तो वोल्टेज 1 वोल्ट थी। जब ये 0.2 एम्पियर हो गया तो वोल्टेज 2 वोल्ट हो गई। इस तरह आप देख सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज की रेशो कांस्टेंट होगी। ठीक है, नहीं करंट टू द वोल्टेज रेशो दैट विल रिमेन कांस्टेंट, आई ओवर वी विल रिमेन कांस्टेंट। इन वैल्यूज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द graph in figure, if we plot a graph between these values, करंट एंड वोल्टेज की वैल्यूज के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ओके, इस तरफ हम वोल्टेज प्लॉट कर लेते हैं, इस तरफ हम करंट प्लॉट कर लेते हैं। तो जो जो वोल्टेज बढ़ती जा रही है करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, this means that there is a the main characteristics of the graph in figure 3.30 are: number 1, the graph of current I versus voltage V is a straight line passing through the origin। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। इसका मतलब है जब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ज़ीरो होगी तो करंट भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, and as you increase the voltage the current also increases along us। this is a direct proportionality है। the ratio of the voltage to the current is a constant and always has the same value। in this example the resistance is the slope। यहाँ पे ये जो slope और gradient of the line which is approximately 10 units। इसकी जो ग्राफ की जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का पता है सब लोगों को क्या होता है या स्लोप क्या होती है? आप लोगों ने ग्राफ Yes, में sir. स्टडी किया होगा कि यहाँ पे जो इसकी ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है। मैथमेटिकली देखें तो चेंज ऑफ वाई एक्सेस ओवर चेंज ऑफ एक्स एक्सेस यानी राइज ओवर रन की जो वैल्यू है वो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान कांस्टेंट है। तो इट मीन्स द करंट टू वोल्टेज रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट and
This has been termed as the Ohm's law. This has been termed as the Ohm's law. Finding this is summarized by the Ohm's law. और Ohm's law ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट, very very important statement, that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the temperature and the other physical conditions remain constant. अब ये अदर फिजिकल कंडीशंस क्या होंगी, कि हम आगे देखेंगे कि मतलब जैसे रेजिस्ट, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कहता है कि जो करंट का फ्लो है ये उसके एंड्स के क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कम करंट फ्लो करेगा। सो इट मीन्स कि टेम्परेचर या जो दूसरी फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, और कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर कांस्टेंट रहेंगी तो करंट बढ़ता जाएगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से। So this statement is called as Ohm's law, and we can say from this definition we can define resistance as, for a constant current the potential difference across the ends of the conductor depends on the amount of electric potential energy that is lost by the electrons in the conductor। ठीक है ना, बिकॉज वी नो के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर्स में, स्पेशली इन मेटालिक कंडक्टर्स, तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा लूज करेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसका मतलब है ज़्यादा करंट लूप में से फ्लो करेगा। सो इट सेज फॉर अ कांस्टेंट करंट, किसी कांस्टेंट करंट के फ्लो करने के लिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर depends on the amount of electrical potential energy that is lost by the electrons in the conductor. The conductor is said to resist the flow of current. The resistance R of the conductor is related to the potential difference across the ends of the conductor given by, अब अगर हम इस रेशो को देखें V is proportional to I है, यहाँ पे अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो दैट विल बी R, एंड R इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, this is called, R is called the resistance of the conductor, and every conductor resists the flow of charge through it। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंडक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, बिकॉज जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या चार्ज मूव कर रहा है, और उसकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद दी पॉजिटिव आयन कोर्स, और इस तरह उनको आगे बढ़ने में जो मुश्किल पेश आती है, इस वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर इज ऑफरिंग ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द चार्ज, टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस इज ए वेरी natural property of any conductor। ठीक है, so it means we can define resistance as the ratio of voltage to the current V over I, and we call this unit, the unit of resistance, as volts per ampere। Okay, so we can define the SI unit of resistance as volts per ampere, which has been given the name ohms. The unit of resistance is ohms. The symbol for ohm is the Greek letter omega। Okay, so a conductor has a resistance of 1 ohm if a current of 1 ampere produces a potential difference of 1 volt across its ends। और पुटिंग इट अनदर वे हम ये भी कह सकते हैं, a conductor will have a resistance of 1 ohm if a potential difference of 1 volt applied across its ends causes a current of 1 ampere to flow through the conductor। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, 1 एम्पेयर, सॉरी
1 ओम रेजिस्टेंस की. Okay, this is the definition of 1 ohm resistance. If we replace the wire with a wire of different dimensions or of a different material, मतलब एक थिक वायर है, थिक वायर मतलब एक मोटी तार है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और एक थिन वायर है उसकी रेजिस्टेंस कम. डिपेंड करता है कि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन और उसकी लेंथ के रेशियो के दरमियान. सो वी से सो अ थिक वायर, एक मोटी तार में से, क्योंकि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, so it will also offer different resistance as compared to a thin wire. एक जो पतली तार है, बारीक तार है, दोनों में डिफरेंस है. why? Because a thick wire and a thin wire having the same length, दो वायर्स आपके पास हैं, एक थिक है और एक थिन है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है. तो जो थिन वायर है वो लेस रेजिस्टेंस फ्लो ऑफर करेगी करंट के फ्लो को, और जो थिक वायर है, जो थिन सॉरी जो बारीक, अ थिक वायर विल प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस, सॉरी लेस रेजिस्टेंस, सॉरी आई एम गेटिंग, जो चीजें मिक्स अप हो रही हैं, सॉरी फॉर दैट. तो एक थिक वायर, जो एक मोटी तार होगी, उसमें रेजिस्टेंस कम ऑफर होगी, और जो थिन वायर है उसमें ज्यादा ऑफर होगी. इसी तरीके से लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. सो व्हाट वी कैन से, if we replace a wire with a wire of different dimensions or of different material, the current is still found to be proportional to the voltage across the wire, but now the constant resistance R relating the two wires is different. Okay, Ji? Is this point clear to Yes, everyone? sir. Yes, sir. Any question, anything which is not clear? ठीक है. सो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसकी जो रेशो कांस्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. सो इट मींस के जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ये मटेरियल के ऊपर और उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, बट स्टिल द रेशियो बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज, दे रिमेन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. रेजिस्टेंस डेफिनेटली वेरी कर सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो कम करंट फ्लो करेगा. लुक एट दिस रिलेशन, R is equal to V over I. For a constant voltage, resistance and current are inversely proportional to each other, and for a constant current, resistance and voltage are directly proportional to each other. ठीक है. So this is what we say the Ohm's law is. Now how we can measure a resistance? We can measure resistance using a simple circuit as shown in figure 3.11, 3.31. अगर आपके पास एक ओम, एक हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस आर है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. दिस इज एन एम मीटर विच कैन मेजर करंट थ्रू द लूप, and this is the voltmeter which is connected to the across the resistance to measure the voltage drop across it. एक बात आप नोट करें कि जब भी हमने एम मीटर कनेक्ट करना है तो हमने इसको लूप में इन सीरीज विद द बैटरी कनेक्ट करना है. इन सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्ट करना है इसको. इसका एक टर्मिनल बैटरी के साथ और दूसरा टर्मिनल जो है वो रेजिस्टेंस के साथ. ठीक है. सो on the other hand, the voltmeter has been connected in parallel to this resistance R. कि इसका काम है इसके अक्रॉस voltmeter will measure the voltage drop across the resistor. So a voltmeter would always be connected in parallel, and ammeter should always be connected in series with the circuit. ठीक है. So if we can
rely on the accuracy of the ammeter and the voltmeter, then the measurements of the voltage across the resistor and current through the resistor allow us to apply the Ohm's law and calculate the resistance from this. अगर हम Ohm's law apply करके ये करंट और वोल्टेज की रेशियो से वोल्टेज करंट की रेशियो रेजिस्टेंस फाइंड करें तो हमें क्या पता चलेगा इफ वी आर श्योर ऑफ आवर मीटर्स आर एक्यूरेट then other methods that allow the comparison of the unknown resistance मतलब ये कि हम किसी भी सर्किट में किसी भी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन वोल्टमीटर और करंट की रेशियो से रेजिस्टेंस फाइंड करें. दिस इज दी one method of finding the resistance across the conductor. Okay, now we discuss a little bit about the cause of the resistance. This is very important कि आखिर रेजिस्टेंस होती क्या है, ये ऑफर क्यों की जाती है. लेट्स से दिस इज ए ब्लॉक ऑफ ए कंडक्टर, पीस ऑफ अ मेटल एंड दीज आर इट्स एटम्स. ये फिगर सबको नजर आ रही है, देख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. एंड Yes, these sir. are the atoms of the block. ये हमने सिर्फ एक लेयर दिखाई है, इस तरह यहाँ पे पीछे भी एटम्स होंगे, ब्लॉक्स होंगे, लेयर्स होंगी. सो व्हाट हैपेंस दैट दीज आर द वाइब्रेटिंग न्यूक्लियाई. मतलब क्योंकि मेटल्स में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में स्पेशली जो मेटल्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कंडक्ट. They are free to move within the conductor. Because of those free electrons, जो करंट है वो किसी मेटल में या कंडक्टर में फ्लो करता है. लेकिन उसके जो बिकॉज वाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम, एंड दैट इज वाई के दीज आर द वाइब्रेटिंग न्यूक्लियाई. मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो इनके आउटर शेल में से फ्री हो गए, तो पीछे क्या बचे, पॉजिटिव न्यूक्लियाई बचे. ये हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे in all possible dimensions. So when an electron tends to move from them, तो इसको इनके साथ इलेक्ट्रॉन का साइज क्योंकि इनसे इनके मुकाबले में बहुत छोटा होता है सॉरी, so it collides with these positively charged nuclei. It has to suffer collisions. जब ये collisions होंगी तो फिर इसको आगे मूव करने में इलेक्ट्रॉन को मुश्किल पेश आएगी. यही वजह है कि इसको हम बोलते हैं रेजिस्ट करना. जैसे रेजिस्ट करने का मतलब आपको पता है, मुजाहमत करना, रुकावट पेश करना किसी चीज में. सो दीज कोलिजन्स between electrons and the positively charged nuclei of the lattice of the material through which the electrons are moving, that creates a sort of resistance to the flow of charges. Okay, so that is how we say कि more of these collisions means more of this resistance. If you can see, it says that the electron has to negotiate with the rapidly vibrating nuclei or the positive ions in the conductor. Every time electron collides with one of these ions, it loses some of its energy. This energy goes into increasing the vibrational energy and in the solid conductor. The temperature of the conductor rises as a result. जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोलिजन के दौरान, इससे क्या होगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. दैट इज़ वाई वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ टुडेज लेक्चर. तो इतना बज़ेन में रखें कि जो ये टेम्परेचर राइज करेगा और उससे चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दुश्वारी पेश आएगी. सो द मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन suffer, it will also increase as they increase with the length of the conductor and area of cross. जितनी ज़्यादा लेंथ में कंडक्टर को मूव करना है उतनी ज़्यादा वो कोलिजन्स ऑफर करेगा, और इसी तरह क्रॉस सेक्शन के साथ भी यही ताल्लुक है. तो इंशाल्लाह we will continue this with in the next class. Hope to see you in the next class in the classroom. So inshallah that's it for today. If you have any question, you can ask me on Monday in the live session.
सी यू इन द यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. सर जी सर जिनका ऑन नहीं है तो वो लोग कैसे करेंगे?